So thank you so much for clicking this video. Once again, I'm here for sharing my thoughts, and today in this video, I'm gonna talk about we do practice every day, but what is the reason? Because of that, our English does not improve. This is the question, and this is the confusion of all the learner. They are facing this thing, even though they do practice every day, but still they are in this dilemma that their English is not improving. So if you are the one who are thinking that your English is not improving despite of doing practice every day, if you are thinking that, so this video is for you, because in this video I'm gonna give you the reason. I'm gonna tell you the reason because of that your English is not improving, because it has happened with me and I have experience about it. So make sure that you are gonna watch this video completely, because from this video you are gonna know that why your English is not improving. You do practice every day, but what is the reason? Because of that your English is not improving. So please do not look behind me, whatever is there. Just listen my words very carefully. Okay, so without any further delay, let's get into the video. So guys, when I started my journey, so that time I was doing practice every day by watching videos. I was thinking that I'm improving my English speaking skill, but it was my mistake. I was making this mistake every day. That's why I took too much time. And after that, when I started practicing of English speaking, so I was doing practicing, but at that time when it came to talk with anyone in English language, I felt that I am not able to speak in English language. Even I was not able to give my introduction. I was doing practice every day. But what was the reason? Because of that, I was not able to speak in English language. So, okay. So there was only one reason. I was doing practice every day, but I was not implementing that things. राइट इम्प्लीमेंट करना मतलब होता है, मैं जैसे बोल तो रही थी उस टाइम पे, इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जो वर्ड्स मैं यूज़ करती थी उसको मैं डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। अगर जैसे कि मैं कुछ वर्ड सीख रही हूँ इंग्लिश का, ओके, तो उसको मैं केवल एक ही दिन प्रैक्टिस करती थी, 2 दिन करती थी, उसके बाद मैं उसको खोल के नहीं देखती थी, उसको यूज़ ही नहीं करती थी। तो दैट इज़ व्हाई आई नॉट एबल टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आई वॉज डूइंग प्रैक्टिस एवरी डे, मतलब हर दिन मैं प्रैक्टिस करती थी बोलने की, नए नए वर्ड को सीखने की मैं प्रैक्टिस रोज़ करती थी। लेकिन उस वर्ड को जो है, जैसे कि आज मैं ये जो भी इम्प्लीमेंट जैसे वर्ड यूज़ करी हूँ, तो इसको मैं केवल प्रैक्टिस के टाइम पर यूज़ करती थी। और जैसे बातचीत करती थी किसी से, तो इस वर्ड को मैं यूज़ ही नहीं करती थी। मतलब जब काम होता था तभी यूज़ करती थी, मतलब प्रैक्टिस के टाइम में। उसके बाद मैं भूल जाती थी कि मैं क्या प्रैक्टिस की हूँ। तो it was one of the most important reason. Because of that I was not improving my English, and it may be the reason of yours, because you do practice every day and you do not apply anything in your practical conversation. You do not apply, that's why you are not improving. And when it comes to talk with anyone in English language, that time your mind gives you a signal that you don't have words, that's why you are not able to speak in English language. Is this happening with you? This is the main reason. Because of that most of the people are not able to improve their English language. Instead of doing practice every day, instead of doing practice every day, they are not able to speak in English language. So अगर ये रीज़न है तो इसको जल्दी से जल्दी क्या करें, इस पर वर्क करें। कि मैंने तो रीज़न बता दिया आपको कि क्यों आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव नहीं हो रही है, राइट। तो अभी आपको काम करना है इसी रीज़न पर। मतलब अब जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो टॉपिक पे बातें करना हो, चाहे कुछ भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, तो उसमें जो वर्ड सीख रहा हो उसको नोट डाउन करते चलिए और उसको रोज़ाना प्रैक्टिस करो। एक जो है क्या बना लो, एक जो है नोट बना लो कि आज मैं इतने सेंटेंस की प्रैक्टिस करूँगी और इसको मुझे 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है। मतलब उसी वर्ड के ऊपर आपको टॉपिक बनाना है, उसी वर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, सो दैट यू कुड डू योर स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑन दोज सेंटेंसेस, राइट। इस तरह से जब 1 वीक तक आप उसी वर्ड्स को बोलते रहोगे, वो भी सेंटेंस के साथ, by making your own sentences. If you will be speaking English language, if you will be doing practice on those sentences, definitely you will improve. In within 1 week you will see the drastic change. ये जो है ना, ये जो मेथड है ना वो अपनाई हुई है, मैं ये मेथड अपनाई हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करी जा रही थी, रोज़ करती थी रोज़। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना किसी के साथ बोलने की, तो कॉन्वर्जेसन हाइब्रो एप्लीकेशन में और स्काइप ऐप में जब मैं लेती थी सेशन, करती थी बातचीत, तो उस टाइम पे मैं नहीं थी एबल।
क्योंकि मैं जब उस टाइम पे मुझे कॉन्वर्जेसन के जस्ट वर्ड्स यूज़ करना पड़ता था, तो जो वर्ड था वो मेरे पास नहीं था। मैं जस्ट खाली प्रैक्टिस करती थी एज़ ए नॉर्मल प्रैक्टिस जो हम डेली करते हैं। तो इसीलिए मैं इम्प्रूव नहीं कर रही थी और दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट लर्न समथिंग न्यू, आई मस्ट अप्लाई सम न्यू strategy for improving my English speaking. And after that, from that day, I just noted down, I locked a copy and I noted down every my weak points and I started working on that. एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो इस विधि को अपनाएं, ओके। क्योंकि आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, आप जैसे कि हम काम तो रोज़ करते रहते हैं, बट वाई वी डू नॉट फील दैट वी आर वी आर गोइंग इन द अपर पॉइंट, वी डू नॉट फील। जैसे हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर लास्ट में एग्ज़ाम में अगर नंबर कम आ जाता है, तो इसमें इसके पीछे क्या रीज़न होगा? हम पढ़ते तो थे, लेकिन उस उतना कॉन्सन्ट्रेट नहीं था जितना होना चाहिए था। दैट इज़ वाई वी गेट लो मार्क्स, वी गेट राइट। तो आप जो है अभी से ही फोकस कीजिए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं कर रहे हो तो जो वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको काम करनी चाहिए, तो वहाँ पे स्टार्ट करिए काम करना। ताकि जो है ताकि जब आप टॉक करो, किसी से बात करो, किसी से इंग्लिश में, तो उस टाइम पे आपको फील होनी चाहिए कि आप इम्प्रूव किए हो। अगर उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, इम्प्रूव नहीं किए हो, ऐसा फील कर रहे हो, तो आपके जो साल भर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आई एम सेइंग दिस ट्रूली, इट्स ऑनेस्टी, आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो फोकस, अपने काम पर फोकस करो। मेहनत रोज कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत पर फोकस करो कि और कैसे बेटर कर सकते हो आप। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, okay? So do not focus on hard work, focus on smart. And how can you make this journey very easy for learning? Okay, try to apply new things in your journey so that you could do something drastic. तो ये रीज़न था जिसकी वजह से बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स जो है वो अपने जो है लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव सीन सो मेनी लर्नर, आई हैव टॉक्ड विद देम। सो जस्ट वर्क ऑन योर रीजन एंड अप्लाई सम न्यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। तो अगर यही एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट इम्प्रूव, क्योंकि हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं बट हम फोकस नहीं करते कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और हम जस्ट करते जाते हैं, हाँ आज किए कल भूल गए, कल किए परसों भूल गए, तो ऐसा ही होता है। तो जस्ट एक नोट बुक में पूरा नोट कीजिए कि 4-5 वर्ड्स, आप नहीं, एटलीस्ट 5 वर्ड्स ही लो, 10 वर्ड्स ही लो, पर उसी में आप सेंटेंस बनाओ, उसी की प्रैक्टिस करो 1 वीक तक। कैसे याद नहीं होगी, कैसे इम्प्रूव नहीं करोगे आप? जैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, 1 वीक आपको डेली रूटीन बोलना है, मतलब बोलना है। डेली रूटीन अपनी नहीं तो अपने भाई की, पापा मम्मी जो भी है, जो भी आपके आसपास है, उसकी डेली रूटीन 1 वीक तक मुझे बोलनी है, मतलब बोलनी है। ये कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, तो उसके बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ओके, दैट्स इट। एंड इफ़ यू डू दिस यू विल गेट ड्रास्टिक चेंज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो रीज़न है वो समझ में आया होगा, और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल वर्क ऑन दिस एंड जस्ट यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल, फोकस वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।